Hello everyone, once again I'm back with a new tutorial in learning business of 12th standard. My name is Pooja and I'm here to assist you people so as to learn core concepts of business. So for today's tutorial I will be covering some cases which will essentially relate to chapter number 4, that is planning. So after successful completion of relatedness of chapter 4 planning concepts, it's time to relate with its cases. So all of the concepts like general meaning of planning, features, importance, limitations and planning process has been duly completed by me in my previous tutorials. I would like to educate here that if you're going to observe the content of chapter number 4, that is planning as per NCERT book, you will notice lastly this chapter covers types of plans. So recently by an effort of CBSE, few topics had been deleted out of the current syllabus and types of plan is one of them. So let's get started with the cases now. So for today's tutorial, I'm going to cover cases. The range of cases will be from 89 to 97 because prior to 89 case, I had completed this in my previous tutorials. So let us initiate with case number 89 now. So Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market. The company policy is to sit only for cash. In 2015, for the first time, companies number one position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on credit also. So Superfine Rice Limited एक largest share hold करती है in the market, that is वो 55% of shares को hold करती है, which means that 55% of market को वो cover करती है. And Superfine Rice Limited basically manufacturer है, largest share hold करता है in the terms of dealing in the rice factor. कंपनी की जो पॉलिसी है दैट इज़ कि वो जो अपने प्रोडक्ट है उसको सिर्फ कैश बेसिस पे ही सेल ऑफ करते हैं. सो इन 2015 पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी की जो नंबर वन पोजीशन थी इन द मार्केट वो पहली बार थ्रेटेंड हुई, चैलेंज हुई, बिकॉज बाकी सारी जो कंपनीज थी उन्होंने अपने गुड्स को, राइस को क्रेडिट बेसिस पे भी सेल ऑफ करना इनिशिएट करा था. बट द मैनेजर्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड continue to rely on its previously tried and tested successful plans which did not work because the environment is not static. सो जो मैनेजर थे सुपरफाइन राइस लिमिटेड के, उन्होंने अपने पुराने जो प्रीवियसली जो टेस्टेड प्लान्स थे उसी के ऊपर बेस रख के अपना जो करंट था, सिनारियो था या जो करंट उनकी फंक्शनिंग थी और उसी के साथ काम करना सोचा. एंड उनको ये भी पता था कि जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है होता है, वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट स्टिल उन्होंने प्रीवियसली ट्राइड टेस्टेड प्लान्स को ही रिलाई किया. दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड, जिसकी वजह से जो सेल्स वॉल्यूम थी वो ड्विंडल हो गई. The above situation is indicating two limitations of planning which led to a decline in its sales, which means कि इस केस के अकॉर्डिंगली दो ऐसे फैक्टर्स हैं, दो ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से जो सेल्स थी वो ड्विंडल हुई, डिक्लाइन हुई. एंड वो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है, दो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है जिसको हम आइडेंटिफाई करना है एज पर दिस केस. सो हियर इन एज पर दिस केस टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की डिस्कशन हुई है. पहला है आपका दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. सो जिस तरीके से हमें पता चला है दैट कि दो जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पे फुलफिल होते हैं, दैट इज managers of Superfine Rice Limited continue to rely on its previously tried and tested successful plans which did not work because the environment is not static. इस लाइन के थ्रू में पता चलता है दैट कि जो पहले टेस्टेड प्रिंसिपल्स थे उनके अकॉर्डिंगली या प्लान्स थे उनके अकॉर्डिंगली ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गारंटी करेंगे आपको सक्सेस, बिकॉज माइट भी उन्होंने पास्ट में उस चीज़ से अटेन किया अपने ऑब्जेक्टिव्स. तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जो प्लान्स हैं, जो सक्सेसफुल प्लान्स उन्होंने पास्ट में फ्रेम किए थे या ट्राई किए थे, वो इस बार भी वर्कआउट करेंगे. एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, विच मीन्स दैट जो आपका एनवायरमेंट है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, विच मीन्स जो प्लानिंग होती है इट माइट नॉट वर्क इन द डायनेमिक सिचुएशन और द डायनेमिक एनवायरमेंट, बिकॉज जब आप प्लान आउट करते हो चीज़ों को तो चीज़ें एजम्पशंस डिफरेंट होते हैं. एंड व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर प्लान और एग्जीक्यूट योर प्लान देन डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एनवायरमेंट हो सकता है वो डिफरेंशिएटेड हो सकता है एज पर योर थिंकिंग और द थॉट प्रोसेस. सो ये दो लिमिटेशंस यहाँ पे फिट इन होते हैं. Now let's cover case number 90. So Indian Drugs and Pharmaceutical Limited is engaged in the manufacturing and distribution of medicines. So which means जो Indian Drugs and Pharmaceutical Limited एक firm है वो engaged है so as to manufacture and distribute the medicines. The company has set up an objective of increasing its sales by 20%, which means that जो company है उसने अपने एक objective को set किया है, that is to enhance the sales volume by 20% of course. To achieve this objective, the company has decided to diversify into baby health care products, which means इस objective को attain करने के लिए 20% sales over को maximize और या enhance करने के लिए company ने ये सोचा है that they are going to produce or they are going to diversify their business into baby health care products. Since the company has already set its objective and developed the premises based on the same,
it want your help for the remaining steps to be taken in this process, which means that इस कंपनी ने ऑलरेडी जैसे ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है एंड उसने एग्जाम्पशंस भी फॉर्म कर लिए हैं जिसके ऊपर बेस होके वो अपनी फर्दर प्लानिंग करेगा. सो ये जो केस है वो डिमांड आपसे ये कर रहा है दैट फर्दर इस प्रोसेस में आपको क्या चीज़ और ऐड ऑन करनी होगी सो एज टू मेक अ सक्सेसफुल प्लान. सो विच मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट द केस इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग प्रोसेस. So as you know that planning process, it consists of your 7 series of steps, that is setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses, selecting an alternative, implementing the plan and follow up action. तो जैसे कि आपने देखा इस केस में ऑलरेडी जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है दैट इज और सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. जैसे इसमें क्लियरली गिवन है कि जो कंपनी उसने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया है तो विच मीन्स उसने अपना फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस उसने कैरी आउट कर रखा है. एंड नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमिसेस, विच मीन्स दैट उन्होंने ये चीज़ को सोचा है कि दे आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सो एज टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स. सो विच मीन्स उन्होंने ये एग्जाम्पशंस को फॉर्म करके या फ्रेम करके डेफिनेटली आगे के अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है या इम्प्लीमेंट करना है. सो एज यू नो कि जो डेवलपिंग प्रीमिसेस है वो सेकंड स्टेप है आपके प्लानिंग प्रोसेस के अंदर. सो जैसे कि ये केस डिमांड करा दैट वी हैव टू लिस्ट आउट द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ योर प्लानिंग. तो डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन को यहाँ पे मेंशन करना होगा. सो नाउ केस नंबर 91. सो केस नंबर 91 एग्जैक्टली सेम था आज जो आपने अभी कवर किया केस नंबर 90 जो हमने कवर किया. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने दोबारा से इस केस को मेंशन यहाँ पे नहीं किया है. सो केस नंबर 91 में सिर्फ नाम चेंज था ऑफ द कैरेक्टर और ऑफ द फर्म डेफिनेटली, तो इसीलिए इसको मैंने दोबारा से रिलेट नहीं करा यहाँ पे. सो क्वेश्चन समझ लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस में आंसर करने के लिए. सो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. तो केस नंबर 91 का क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा था दैट एज पर द केस यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विच आर नॉट इंडिकेटेड, विच मीन्स दैट अगर हम लोग केस नंबर 90 के स्टेप्स के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे दैट इज योर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रीमिसेस सिर्फ यही एग्जीक्यूट हुए थे. तो ये क्वेश्चन भी आपसे ये डिमांड कर रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेप्स है जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए, इंडिकेट नहीं किए हैं. सो विच मीन्स आंसर जो है वो सेम रहेगा केस नंबर 90 और 91 का. दैट अगेन यू हैव टू आंसर दैट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन इज योर स्टेप्स जो कि इस केस के अकॉर्डिंगली इंडिकेट नहीं हुए हैं. सो लेट्स कवर नाउ केस नंबर 92 को कवर कर लेते हैं. So Cirrus Business is a balloon manufacturing firm. With the arrival of foreign firm, it is feeling the pressure of improving its business strategy. So which means that ये जो Cirrus Business है वो एक balloon manufacturing company है या firm है जो बलून को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है. सो जैसे ही अराइवल हुआ फॉरेन फर्म्स का, सो ये जो फर्म है इसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है एंड दे थिंकिंग सो एज टू इम्प्रोवाइज द स्ट्रैटेजी सो एज टू कोप अप द कॉम्पिटिशन और द प्रेशर जो कि उनको मार्केट के थ्रू मिल रहा है. सो बिकॉज ऑफ द फर्म्स एडवांस प्लानिंग इट कुड नॉट सडनली ब्रिंग चेंजेस in its plan as the whole organization had started implementing the decided plan, which means that कि जैसे कि इस फर्म ने पहले से ही एडवांस प्लानिंग कर रखी है, सो सडन चेंज या सडन मॉडिफिकेशन उस प्लान में पॉसिबल नहीं होगा. एज जितनी भी डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स से जितने भी लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्म करते हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्टअप कर दिया है. जो प्लान्स पहले से डिसाइडेड थे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो बट दिस ईयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंश्योर सक्सेस, बट दिस टाइम फॉर श्योर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस को अटेन करना ही है, ये इनका मिशन बन चुका है. सो हाउ एवर द फर्म नोज दैट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज चेंजेबल एंड कॉन्टिन्यूज टू वेरी इन अ फास्ट मैनर. तो ये जो फर्म है वो ऑलरेडी जानती है दैट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ समथिंग जो कि फ्रिक्वेंट फॉर्म पे चेंज लेकर आएगा अपने साथ एंड दैट टू वो जो चेंज हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी हो सकता है. The organization wants to prepare in advance for a better future. So as they are very much aware about the fact कि environment dynamic है, तो this is the reason कि जो organization है वो यहाँ पे पहले से अपने आप को prepare करना चाहती है so as to have a best kind of plan or the better kind of plan जिससे उनका जो future है वो secured रहे. It has decided to allocate a portion of its budget specifically for proper planning, which means that उन्होंने इस चीज़ को देख के, इसकी importance को देख के क्या सोचा है that they are going to allocate, they are going to distribute a portion of its budget. जो इनका overall budget है उसमें से कुछ portion of the money they are going to specifically allocate for the planning department, for the planning purpose, because इनको पता है that कि जो planning है वो काफ़ी ज़्यादा expensive process होता है, because जो expert panel of people को आप hire करोगे so as to provide the best kind of the plans for you people, so definitely they are going to charge a
हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू इन द फॉर्म ऑफ द फीस एंड द सर्विस चार्जेस, जो कि डेटा आप यहाँ पे सिक्योर करोगे. सो हैज़ टू डेवलप द बेस्ट काइंड ऑफ द प्लान, कीपिंग इन कंसिडरेशन कि आपके आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हैं. सो विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द अबव केस. सो ये जो केस है वो आपसे डिमांड कर रहा है दैट आपको उन लिमिटेशंस के बारे में बताना है प्लानिंग की, जो कि एज पर दिस केस यहाँ पे मेंशन या आइडेंटिफाई किए गए हैं. सो एज आई टोल्ड यू दैट कि हमें यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के साथ रिलेट करना है एंड स्पेसिफिक लिमिटेशंस के साथ ही रिलेट करना है, जो कि एज पर दिस केस यहाँ पे हाईलाइट या मेंशन हो रखा है. सो एज पर दिस केस यहाँ पे 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को हाईलाइट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. पहला है आपका दैट इट लीड्स टू रिजिडिटी, विच मीन्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. सो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? इफ़ यू गो थ्रू दिस लाइन, बिकॉज ऑफ द फर्म्स एडवांस प्लानिंग इट कुड नॉट सडनली ब्रिंग चेंजेस इन इट्स प्लान, विच मीन्स दैट कि ऑलरेडी ये जो फर्म है इसने एडवांस प्लानिंग कर रखी है एंड एज जब आप प्लानिंग करते हो तो डेफिनेटली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको फॉलो करते हो. सो जैसे ही एक प्लान फॉर्मुलेट हो जाता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे कि इस लाइन में भी मेंशन है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है प्लान, जो कि सीरियस बिजनेस ने यहाँ पे फ्रेम किया था. सो जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपका एक प्रॉपर प्लान फ्रेम हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग दैट, देन डेफिनेटली वो रिजिडिटी को लेकर आता है अपने साथ, विच मीन्स जो ब्रॉड गाइडलाइंस या ब्रॉड डायरेक्शन आपको वो जो प्लानिंग होगी वो ऑफर करेगी, आपको वो एग्जीक्यूट करनी होती है. सो सडन चेंज किसी भी प्लान में पॉसिबल नहीं होता है, मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, विच मीन्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. पहला लिमिटेशन जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन जो यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग लिमिटेशन, दैट इज ये हो सकता है आपका इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. एंड ये चीज़ कैसे हमें पता चली है, अगर हम इस लाइन को गो थ्रू करते हैं. However, the firm knows that the external environment is changeable and continues to vary in a fast manner, which means that यहाँ पे इस environment के बारे में बात हुई है, that उस business environment के बारे में बात हो रही है, which is changeable, which is dynamic in nature. बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने साथ चेंजेस को लेकर आता है एंड प्लानिंग जो है वो जो आप यहाँ पे फ्रेम करते हो, टाइप्स ऑफ प्लान्स को आप बनाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आप अटेन करना चाहते हो, वो डेफिनेटली एक सर्टन एजम्पशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड व्हाट इफ अगर वो एजम्पशंस चेंज हो जाते हैं इन द नियर बाय फ्यूचर, तो डेफिनेटली ये एक रिजल्ट होता है आपके एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट का, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है. सो बाय मीन ऑफ दैट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग है इट माइट नॉट वर्क इन डायनेमिक सिचुएशंस और द डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज डायनेमिक एनवायरनमेंट अपने साथ बार बार फ्रिक्वेंट चेंजेस को लेकर आता है एंड जो आपने प्लान आउट किया होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर जो चेंजेस हैं वो फेवरेबल नहीं होते हैं तो आपकी प्लानिंग भी यहाँ पे हैम्पर होती है. सो जो थर्ड लिमिटेशन है यहाँ पे प्लानिंग का, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. सो ये हमें कैसे पता चल रहा है? ऑफ कोर्स अगर हम इस लाइन को गो थ्रू करें तो हमें क्लियरली चीज़ डिपिक्ट हो जाएगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेटर काइंड ऑफ प्लान को या फ्यूचर को फ्रेम करना चाहता है. सो फॉर द सेम रीजन दे हैव डिसाइडेड टू एलोकेट अ पोर्शन ऑफ इट्स बजट स्पेसिफिकली फॉर पर्पस ऑफ द प्लानिंग, as they are aware about the fact that it is going to be an expensive process of course. जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट फीस या सर्विस चार्जेस के बारे में बात हुई है. सो एज ये ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही पता है कि दैट जो प्लानिंग होगी, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो रिक्वायर करती है कि वो एक्सपेंसेस को करे या एक्सपेंसेस को इनकर किया जाए. सो डेफिनेटली ये जो लिमिटेशन दैट इज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, वो भी यहाँ पे फॉर श्योर इम्प्लीमेंट हुआ है. नाउ लेट्स कवर केस नंबर 93. So Flows Technology deals in bulb manufacturing business. It plans for a successful year of production and sales this year. So जो Flow Technology है वो मैन्युफैक्चर करता है बल्ब को एंड ये जो फर्म है ये सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन को पहले से ही प्लान आउट कर चुकी है कि इस बार किस तरीके से प्रोडक्शन होगा या कैसे हमें इस बार सेल करनी है, वो पहले से ही प्लान आउट कर चुके हैं. It has in advance given targets to all its departments and employees, which means that जो plans या जो objectives उन्होंने set किए हैं अपने लिए so as to attain, definitely वो उन्होंने अपने जो departments हैं, जो segmented departments या units हैं, उनको यहाँ पे पहले ही ऑफर कर दिया, बता दिया गया उनको. एंड सेम गोज फॉर द एम्प्लॉयज़ जो कि यूनिट में या डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनके साथ. तो क्लियर कट यहाँ पे पहले से ही जो डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ उनको पहले से पता है कि व्हाट इज सपोज टू बी परफॉर्म बाय देम दिस ईयर. सो द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी अबाउट दिस. सो विच मीन्स दैट जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट द फैक्ट what they have to perform, how they have to perform.
और कब करना है, कैसे करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस उनको पहले ही मिल चुकी हैं. They know that now they won't have to do unconcerned activities, thus leading to, which means that कि उनको as an employee, as an organization या department के फॉर्म पे जब ये information मिली है, so इनको ये पहले से पता है that कि अब इनको unnecessary kind of activities को perform नहीं करना होगा, random activities को perform नहीं करना होगा. सो बाई मीन ऑफ दिस वो ज़्यादा फोकस रहेंगे सो एज टू अटेन द रिजल्ट्स. एंड ऑफ कोर्स वो जब रैंडम एफर्ट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सेव द रिसोर्सेज एज वेल. सो द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 2 न्यू प्लांट्स इन द सर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. सो एट द सेम टाइम ये जो कंपनी है वो ये सोच रही है कि 2 नए प्लांट्स या 2 नए यूनिट्स को सेट करेंगे इन द सर्दर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया. सो फॉर दिस सम कॉन्क्रीट प्लान हैज़ टू बी मेड. सो उनको ये चीज़ पता है, ये जो उनका जो डिसीजन है दैट दे आर गोइंग टू हैव न्यू प्लांट्स, 2 new plants in fact. So ये ऐसे ही नहीं हो सकता है. Of course for that a concrete plan is to be made or prepared. So the main core team of the company has decided to weigh all the options and then choose the best one. So जो core team है, जो basically जो team involved है, वो यहाँ पे ये सोच चुकी है दैट कि now the time has come when they have to weigh, which means that they have to evaluate all of the options or the alternatives जो कि उनके पास available हैं, so as to attain their objectives. And at the same time उनको ये भी पता है दैट कि जो alternatives वो identify करेंगे, जो options वो identify करेंगे, they have to make a comparison out of every of the alternative, चाहे वो pros हो चाहे वो cons हो, so as to decide कि कौन सा जो alternative उन्होंने select किया है वो अच्छा होगा, वो बेस्ट वन को पिक कर सकेंगे. द रोड माइट बी लॉन्ग बट द कंपनी इज गियर टू फेस ऑल द चैलेंजेस. ये कंपनी को पहले से पता है दैट कि ऑफ कोर्स ये जो जर्नी होगी, जो डिस्टेंस होगा, सो एज टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स इट वुड बी क्वाइट लेंथी, काफ़ी ज़्यादा लेंथ को होल्ड करेगा. बट कंपनी जो है वो यहाँ पे सेटअप अपने आप को कर चुकी है इन द वे, इन द मैनर दैट दे आर गोइंग टू दे आर इन टू रेडी मोड कि वो जो भी चैलेंजेस आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको फॉर श्योर यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे और उसको ओवरकम करने के एफर्ट करेंगे. सो इन द अबव केस आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड. सो एज पर दिस केस यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है जो कि एज पर दिस केस यहाँ पे हाईलाइट या मेंशन हुई है. सो एज पर दिस केस वी कैन से दैट कि इस केस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस को इजीली आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंस है ऑफ योर प्लानिंग, जो एज पर दिस केस यहाँ पे मेंशन, दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. सो ये चीज़ हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हमें ये लाइन गो थ्रू करनी है तो क्लियरली इसका आंसर यहीं पर है. इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट्स टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, विच मीन्स दैट कि उन्होंने पहले से ही अपने टारगेट्स के बारे में, which means what they have to perform, how they have to perform, at what time they have to perform, and who all would be dependent or who would be the responsible people जिसके थ्रू इस टास्क को पूरा किया जाएगा. टारगेट्स को अटेन करने के लिए कौन कौन लोग हैं जो कि हेल्प आउट करेंगे. सो बाई मीन ऑफ दिस वी कैन क्लियरली से दैट कि जो प्लानिंग है, ऑफ कोर्स इट गिव्स यू प्रायर इन्फॉर्मेशन और द डायरेक्शन जो कि आपको फॉलो करना होता है. सो बाय मीन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर करी गई है विद द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, फॉर श्योर यहाँ पे जितने भी लोग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, यूनिट्स में काम करते हैं या अलग अलग लेवल्स में काम करते हैं, अगर उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन और हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन. सो ये जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, डेफिनेटली ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको डायरेक्शन ऑफर करती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है. सो डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो आइडेंटिफाई हुए दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. So coming down to the next importance of planning as per this case, it is planning reduces overlapping and wasteful activities. So इस चीज़ को हम identify कर सकते हैं by going to this line. This is the departments and employees are happy about this. They know that now they won't have to do unconcerned activities, which means that कि जब भी हम लोग यहाँ पे पहले से ही प्लान आउट करते हैं तो ऑफ कोर्स बाय मीन ऑफ प्लानिंग हमें यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाता है. तो हम रैंडम या एक्सपेरिमेंट्स को अवॉइड करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते हैं या हिट एंड ट्रायल एरर मेथड पे हम रिलाई नहीं करते हैं. हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं बिकॉज हमें वो प्लान्स पहले से ही बताता है कि हमें क्या करना एग्जैक्टली. सो हम अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होते हैं. देयर बाय हम ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच के फॉर्म पे अपने रिजल्ट्स को अटेन कर सकते हैं एंड वी कैन सेव आवर रिसोर्सेज ऑल्सो. सो डेफिनेटली बाय मीन ऑफ दिस एफर्ट जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, सो एज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द
डिपार्टमेंट एंड टू द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिड्यूस किया है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़ और बाय द डिपार्टमेंट्स। So if I talk about the third importance which has been highlighted in this case, it is planning facilitates decision making. So ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, यहाँ पे अगर इस लाइन को पढ़ते हैं, the main core team of the company has decided to weigh all the options and then choose the best one, which means that कि यहाँ पे जितने भी options है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे अपने गोल्स से अपने टारगेट्स को अटेन करने के लिए, उसको वो टीम पहले क्या करेगी, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को इवेलुएट करेगी और उसके बाद फाइनली वो सेलेक्ट करेगी, चूज़ करेगी द वन बेस्ट मेथड और द वे और द प्लान या ऑल्टरनेटिव जिसके थ्रू अपने टारगेट्स को अटेन कर सकते हैं। सो विच मीन्स प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, फुल्ली यहाँ पे हाईलाइट होता है एज की प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सो जो मेन कोर टीम है वो भी यही चीज़ को परफॉर्म कर रही है। डेफिनेटली ये जो फैक्टर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। Now let us cover case number 94. So case number 94 को इनिशिएट करते हैं, दैट इज एन एस्टैब्लिश्ड फर्म हैज़ 50 years of experience in shipping industry. So एक जो फर्म है उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है इनटू द शिपिंग सेक्टर। The company time and again prove itself as one of the dominant figure in the market. So in the past also ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, एक अच्छे खासी इमेज और गुडविल को क्रिएट कर रखा है एंड दे आर एक्टिंग एज वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन द मार्केट। द प्लान फॉर द होल ईयर इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। सो ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है सो एज टू प्लान इन एडवांस एंड पूरे साल को पूरे ईयर को पहले से ही प्लान कर लेती है। सो इनके अकॉर्डिंगली जो प्लानिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ द कंपनी द प्लान्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स अपॉन विच अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेस्ट। सो ये जो फर्म है, उनके जो ओनर हैं, उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है, उनके खुद के यहाँ पे वर्डिक्ट हैं। जो सबसे पहला वर्डिक्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है या जो व्यू पॉइंट दिया है, दैट इज़ कंपनी जो है वो अपने प्लान्स को इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट मानती है या प्लानिंग को इसलिए इम्पॉर्टेंट मानती है बिकॉज दे सर्व एज द बेसिक स्ट्रक्चर्स विच मीन्स दैट वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर पूरा बाकी अदर मैनेजरियल फंक्शंस डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज़। एट द सेम टाइम ये जो ओनर है वो ये भी बिलीव करते हैं कि प्लान्स को जो आपने प्रिपेयर किया या फ्रेम आउट कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू हैव टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द वन हु इज़ गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट योर प्लान्स। सो उनको आपको पहले बताना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्लान आउट कर रहे हो या प्रॉपर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। सो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका काम यहाँ पे ये बढ़ जाता है दैट कि नॉट ओनली दे हैव टू कम्युनिकेट द प्लान्स फ्रेम्ड टू द ऑल लेवल्स, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, सबको उनको प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है, प्रॉपर कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। एंड नॉट ओनली दिस कम्युनिकेशन ही नहीं, बट दे हैव टू सी दैट कि जो प्लान्स को बोला गया है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑफ कोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स बिकॉज जितने भी लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर द कॉमन पर्पज ऑफ कोर्स टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक इज़ अ हैबिट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे वैल्यूबल है वो है कि ये जो फर्म, ये जो कंपनी है वो ऑल्दो काफ़ी सक्सेसफुल रही है हमेशा से। सो उनका जो मंत्रा है फॉर द सक्सेस फैक्टर वो ये भी है कि वो जो पास में अपनी गलतियाँ करते हैं उसको डेफिनेटली एक इम्प्रूव करते हैं, उससे वो सीखते हैं सो दैट वो रिपीटेटिव काइंड ऑफ मिस्टेक्स को फॉर श्योर दोबारा ना करें। दे प्रिपेयर प्लान्स फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर द लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे जो उनकी प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी वो प्लान आउट करते हैं। सो अगर आगे बात करते हैं, इसमें मेंशन है दैट कि इट कैन बी सीन दैट थ्रू आउट द ईयर द प्लान्स आर प्रिपेयर्ड वन आफ्टर अनदर। सो एज ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि पूरे साल प्लान्स बनते रहते हैं, एक प्लान बनता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एक प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, देन अगेन ये कंपनी इस सर्कल को मेंटेन रखती है, ये एक्टिविटी को मेंटेन रखती है।
सो शिपिंग इंडस्ट्री नीड सच डेडिकेटेड कंपनीज। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये कहा गया है दैट कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो ऐसे ही डेडिकेटेड कंपनीज को ऑफकोर्स होल्ड करना चाहती है, या ऐसी कंपनीज की रिक्वायरमेंट फॉर श्योर शिपिंग इंडस्ट्री को है। द गोल्स आर स्पेसिफिक एंड द एक्टिविटीज टू अचीव दिस स्पेसिफिक गोल्स आर अंडरटेकन। जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जो टारगेट्स आप अटेन करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एट द सेम टाइम जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे इस गोल्स को अटेन करने के लिए वो भी स्पेसिफिक होनी ज़रूरी है। आप रैंडम एफर्ट्स नहीं करोगे, आप यहाँ पे स्पेसिफिक एफर्ट्स करोगे। द कंपनी हैज़ प्लान्ड अ ग्रोथ ऑफ 20% इन रेवेन्यू दिस ईयर। सो एट द सेम टाइम इस बार जो ये जो फर्म है उसने 20% रेवेन्यू को एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट करने के बारे में इस बार सोचा है। लेट्स सी हाउ मच इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू अचीव बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो देखते हैं कि आगे जाके कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस नाउ। सो इन द अबव केस यू नीड टू आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द characteristics of the planning which has been mentioned in this case. So we need to identify that features. So as per this case यहाँ पे हम लोग 4 features of planning को identify कर सकते हैं one after another. तो सबसे पहला जो यहाँ पे feature of planning है जो highlight हो सकता है that is planning is primary function. So किस तरीके से primary function है उसको understand करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है दैट कि द प्लान्स फॉर द होल ईयर इज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ द कंपनी द प्लान्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स अपॉन विच अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेस्ट, विच मीन्स दैट प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या एटमोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय मीन ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंडेंट होके ही बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेस्ड। सो ये प्रोसीड करता है द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस एंड अलाउ करता है मैनेजर को सो एज टू ऑर्गेनाइज, स्टाफ एंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ इन अ बेटर वे सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो सेम ये जो फर्म है वो ये काम कर रही है दैट दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्लानिंग एंड दे बिलीव दैट कि जो प्लान्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं upon which other management functions have to rest or they have to be dependent. So this is a major reason कि वो प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो जो नेक्स्ट यहाँ पे फीचर आइडेंटिफाई होता है प्लानिंग का, इट इज़ प्लानिंग इज परवेसिव, विच मीन्स परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ रिस्पेक्टिव लेवल, डिपार्टमेंट, यूनिट और द पर्सन। सो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मीन ऑफ दिस लाइन दैट की द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, विच मीन्स दैट हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर एम्प्लॉय पे, हर यूनिट पे जो आपने यहाँ पे प्लान्स को फॉर्मुलेट किया है ऑफ कोर्स आप उसको कम्युनिकेट भी करते हो। एट द सेम टाइम यू ओवरसी दैट कि वो जो प्लान्स है वो हर एक लेवल और हर एक डिपार्टमेंट फिट इन करे या उसको एग्जीक्यूट या कैरी आउट करे। सो बाय मीन ऑफ दिस ऑफ कोर्स वी कैन रिलेट विद द फीचर ऑफ प्लानिंग दैट इज कि जो प्लानिंग है वो परवेसिव है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ रिस्पेक्टिव यूनिट और द डिपार्टमेंट और अ पर्सन। So if I talk about the third feature which is being implemented over here is planning is continuous. So planning is continuous का मतलब क्या है दैट कि planning जो है वो never ending process है। So definitely जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, इस्टेब्लिश होता है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, सो ऑफ कोर्स जो भी फर्म होता है उसको प्लान आउट करना एसेंशियल होता है। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू हम लोग प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस को रिलेट करते हैं या सजेस्ट करते हैं। सो इस केस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई मीन ऑफ दिस लाइन की ये चीज़ यहाँ पे फिट इन हो रही है। They prepare plans for short term as well as for the long term, where it can see that throughout the year the plans are prepared one after another. So definitely ये लाइन आपको सजेस्ट कर रही है कि प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इस फर्म में भी प्रेजेंटेड है और एग्जीक्यूटेड है। So if I talk about the fourth feature which is being highlighted over here as per this case, it is definitely planning focuses on achieving objectives, which means that जो प्लानिंग है वो फॉर श्योर इस तरीके से बनता है या प्लान इस तरीके से क्रिएट होता है एंड जो प्लानिंग का मोटिव है दैट इज़ ऑफ कोर्स टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आप ऑब्जेक्टिव को अटेन करना चाहते हो उसी को अटेन करने के लिए बेसिकली आप प्लान आउट करते हो। सो यहाँ पे बाय मीन ऑफ दिस लाइन वी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, द गोल्स आर स्पेसिफिक, विच मीन्स दैट जो गोल है वो स्पेसिफिक है, इट इज़ सर्टन इन नेचर जो कि आप अटेन करना चाहते हो। एट द सेम टाइम जो एक्टिविटीज़ आप प्लान आउट करोगे so as to attain your goals it has to be specific. आप random efforts नहीं करोगे। If you really want to achieve objectives then for sure you have to focus on only those objectives which is going to help you out so as to attain your objectives in common. So यहाँ पे जो fourth feature के form पे highlight हुआ that is it focuses on achieving objectives. So coming down to case number 95, if you can see that कि जो case number 95 और 89 that is similar.
सो अगेन केस नंबर 95 को मैंने इसलिए डाला बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस जो कि आपने पहले तो रिलेट कर लिया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द केस जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट फॉर्म पे या फ्रिक्वेंट टर्म्स के फॉर्म पे रिलेट किया गया है बाय मीन ऑफ द योर मॉक पेपर्स और द सैम्पल पेपर्स. सो डेफिनेटली इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हुए मैंने दोबारा इसको केस नंबर 95 में पुट इन किया है. So now let's cover case number 96. Suhasini, a home science graduate from a reputed college, has recently done a cookery show, or I'm sorry, it's cookery course. She wished to start her own venture with a goal to provide health food at reasonable prices. तो जो सुहासिनी है वो एक होम साइंस ग्रेजुएट हैं and she has done this course from a reputed college of course, and recently she has done a cookery course also. So after doing all this of effort, she really want to start her own venture. एंड उनका जो गोल है दैट इज़ टू प्रोवाइड हेल्दी फूड एट रीजनेबल प्राइजेस टू इट्स क्लाइंट्स और टू द कस्टमर्स. शी डिस्कस्ड हर आइडिया विद हर टीचर और द मेंटर हु एनकरेज्ड हर. सो उन्होंने इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली अपने टीचर से बात किया एंड उनके टीचर ने उनको एनकरेज भी किया फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ आइडिया. सो आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग हर बिजनेस वेंचर, दे शॉर्टलिस्टेड द ऑप्शन टू सेल रेडी मेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक्स, विच मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्कशन किया दोनों ने, मतलब कि मेंटर ने एंड ऑफ कोर्स द सुहासिनी ने, दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया बिकॉज जो यहाँ पे उनका गोल था दैट वाज टू प्रोवाइड हेल्दी फूड एट रीजनेबल प्राइजेस. सो दे हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस जिसका क्रक्स से जिसका कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ दैट कि शी शुड बी सेलिंग रेडी मेड वेजिटेबल शेक्स एंड द सत्तू मिल्क शेक्स. सो उसके बाद देन दे वेट द प्रॉज एंड द कॉन्स ऑफ बोथ द शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस. सो उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था कि दोनों में से क्या हम लोग को ऑफर करना चाहिए एज द फॉर्म ऑफ योर हेल्दी फूड एट रीजनेबल प्राइजेस का जो गोल था उसको अटेन करने के लिए. सो जो दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को इवेलुएट किया गया सो एज टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे केस डिमांड कर रहा है दैट नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑफ कोर्स ये जो केस है अभी रिलेट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जा रहा है बिकॉज जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि ये जो आज हम केसेस कवर कर रहे हैं इट इज़ ओनली अबाउट योर प्लानिंग सेगमेंट, ओनली अबाउट योर प्लानिंग चैप्टर. सो अभी आपको यही पता है दैट कि अभी हमने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कवर किया, तो ऑफकोर्स जो हम प्लानिंग के केसेस कर रहे हैं तो हम उन्हीं फंक्शन की बात कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन पूछा गया है कि कौन सा डिस्कस हुआ है दैट इज़ ऑफकोर्स योर प्लानिंग. सो क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूशन मोड में है वो डिमांड कर रहा है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो अगर स्पेसिफिकली हम इसी चीज़ के बारे में जाते हैं, इसी केस के अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. सो प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग. सो वो फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, एज वी कैन सी दैट आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस जो कि वो स्टार्टअप करना चाहती थी एज अ वेंचर सो एज टू ऑफर द हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइजेस. सो ऑफकोर्स यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया इस कॉन्टेक्स्ट में सो एज टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि वो ऑफर कर सकती हैं या करना चाहिए बिफोर गिविंग अ फाइनल डिसीजन टू द ऑप्शन जो कि वो पिक करना चाहेंगी. सो ऑफकोर्स ये जो फीचर है वो यहाँ पे फिट इन होता है. सेकंड क्वेश्चन डिमांड करता है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड इन द केस. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई 3 लिमिटेशंस ऑफ योर. सो अगर हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करें, अगर इस केस के अकॉर्डिंगली बात करें सो यू कैन ईजिली इवेलुएट कि एज पर दिस केस यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है. सो व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज़ कि आप यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को मेंशन कर सकते हो. एंड अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही दैट यू नीड टू डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द केस, तो कौन सा फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था दैट वाज प्लानिंग. ऑफ कोर्स प्लानिंग की लिमिटेशंस आपको मेंशन करनी है. एंड एज ये केस कोई भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ लिमिटेशन को रिलेट नहीं कर रहा है तो वी कैन मेंशन एनी 3 limitations as being demanded by the case. So let's cover case number 97. Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. So due to this habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but also reduce the cost of production of the computers. So Rahul एक worker है जिनका काम है to assemble 2 computers per day. So उनका target है to assemble 2 computers एक दिन में. एंड उनकी हैबिट है दैट ही ऑलवेज ट्राइज टू डू थिंग्स डिफरेंटली. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ हिज उनके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक होता है दैट कि जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो असेंबलिंग टाइम होता है, कंप्यूटर्स को असेंबल करने का जो टाइम होता है वो डिक्लाइन होगा, वो कम होगा. बट एट द सेम टाइम ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा कंप्यूटर्स का ओवरऑल वो भी रिड्यूस हो जाएगा. Instead of appreciating him, Rahul's supervisor ordered him to complete the work as per the methods and technique decided earlier, as nothing could be changed at that stage.
तो जब ये आइडिया के बारे में पता चलता है राहुल के सुपरवाइज़र को, तो वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली वो उनको ऑर्डर करते हैं वॉट एवर हैज़ बीन सेड टू हिम अर्लियर, उसके अकॉर्डिंगली, उसी टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली, उसी मेथड के अकॉर्डिंगली वो काम करना है। एंड कोई भी नई चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, कोई भी लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द अबव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नीड एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। सो एज पर दिस केस हमें आइडेंटिफाई करना है एक लिमिटेशन जो कि इस स्पेसिफिक केस के ऊपर डिपेंडेंट है, या इस दैट केस कवर्स द द लिमिटेशन फैक्टर। सो अगर स्पेसिफिकली इस केस के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, सो इट इज़ ऑल अबाउट, so the answer over here is planning reduces creativity. So usually in an organization, planning function is performed by the top management and the rest of the members are required to implement these plans. So as the result, middle management and other management or the other members are neither allowed to deviate from plan or nor they are offered or authority to act on their own. So same is for the case of your Rahul. So as a worker, if something strike in his head, something was there in his head as a form of your idea जो कि help out कर सकता था, not only to reduce assembling time of computers but of course overall cost of production could also had been dwindled because of this. So इसकी वजह से भी कोई भी changes नहीं आए, and at the same time he was ordered by his supervisor that he needs to perform accordingly the way he has been told earlier to perform, as nothing could be changed at that moment of time. So which means that whenever a plan is prepared or framed, so definitely जो आपकी creativity होती है to perform things differently or in the distinctive manner, वो चीज़ यहाँ पे facilitate नहीं होती है, because you have to conform to the plans whatever has been said to you by the mean of planning. You have to simply blindfoldedly you have to follow that. So this was all about जो कि राहुल से भी कहा जा रहा था. So this is the limitation जिसके बारे में ये केस है. So this was all about for today's tutorial. So आज tutorial में जो हमने cases cover कर रहे हैं, that is only confined to chapter number 4, that is planning. So of course do relate with it, and thank you all for giving your time, and that's all for today's tutorial. Thank you so much.